Good evening, all of you. Am I audible, students? Just a minute. Okay. So, in this lecture, we are going to solve the doubts. We are going to take the solution of test paper 8, mental ability and English. It means language. Okay. So, test paper 8 solution is this is, and the student want to हिरल से बात करते हैं हम. हिरल, are you there? Can I audible, ma'am? Yes, you are audible. So Hiral, this is the first question of test 8, odd man out. This is the chapter Ma'am, odd my man out. answer is A. Why? Ma'am, because in every question there is curved line. In 3 there is 2 curved lines. In 5 there is 1, and in 9 there is 1. So in 1 there is no curved line. That's why 1 is odd man out. Okay, so you are saying that option number 1 is the answer, but it is showing option number D. Why is it option D? Anyone else who want Ma'am, so? because it is closed Where is figure. it? Tell me in the chat. Yes, beta. What do you want to say? But because it is closed figure. Closed figure? Where? One is not closed. Tell in the comment section. I am not accepting your hand raise. You have to tell in the chat section that what is the reason why option D is the answer. Good evening, Mihira. Why? I know option D is the answer, but why? Because it is closed figure. क्लोज्ड फिगर क्लोज देखते हैं. चलिए दूसरे स्टूडेंट से बात करते हैं. शिवम गुगे, आपको क्या पता Ma'am, है बेटा? यस शिवम. Teacher, teacher, can you see the question? Yes. 1.59. Yes, These ma'am. are, someone is saying that these are prime numbers. These are not prime numbers because 1 and 9 both are not prime numbers. Yes. Ma'am, because if we plus 1 plus 2 is equals to 3, 3 plus 2 No, 5, no, then 5. no. बिल्कुल भी नहीं. आप जो लॉजिक बता रहे हो वो सीरीज का लॉजिक है. क्वेश्चन ऑड मैन आउट का है. Then जो बाकी स्टूडेंट्स ने बताया दैट 9 हैव क्लोज्ड फिगर. 9 में जो सर्कल बन रहा है वो क्लोज्ड है. बाकी कहीं पर भी क्लोज्ड फिगर नहीं है. इट मींस ऑप्शन डी इज द आंसर. नेक्स्ट yes. क्वेश्चन. जस्ट हीरल को चांस दिया था हमने, तो हीरल से बात करते कुछ क्वेश्चन तक.
Where are you, Hero? Raise your hand, Hero. Raise your hand, Hero. Yes. So, Hero, next question is question number 2. Yes, ma'am. Ma'am, answer is option number D. Okay, you are saying D. Why? Ma'am, because Explain in one line. Only this one line. figure, एक लाइन में explain करना है. मैम सबवे जो है वो ऐसे जो नीचे है ऊपर जो जो सर्कल है वो अप साइड है, जो ब्लैक साइड है उस पे नहीं है, जो लाइन है उसके नीचे है, Yes. सब The इसमें, position of बस the फोर्थ में नहीं है. shaded circle is different in option D. So, D is the answer. Next question. यस मैम, माय आंसर इज डी. You are saying that D. Why? Because that is the four What? height and one is number. Okay. Next one. Are you there, Hira? Yes, ma'am. Am I audible, ma'am? Yes, yes. Ma'am, that A, B, C are alphabets and triangle are shape. Triangle is shape, that's why triangle is odd man out. Okay. Next question. Question number 5. Similar question figure का question है. Ma'am, my answer is option number B. Okay, B is the correct one. Next question. Question number 6. So my answer is D. You are saying that D and it is the correct one. Next question. Question number 7. Ma'am, wait a minute. Ma'am, my answer is B. You are saying that B is the answer. Let's see. Yes, it's correct. Question number 8. Ma'am, my answer is option number B. It's correct. Question number 9. Pattern completion का question है. Yes, ma'am. Ma'am, my answer is option number D. You are saying that D, and what is the logic? Because that triangle is No, in tell me the rule. A, Rule बताइए. and the mirror, the first, second is the mirror reflection of first, so fourth will be mirror reflection of third. Okay, it's correct. So option D is the answer. Next question. Question number 10. Ma'am, that is mirror reflection of third figure Okay, and the answer will is be the fourth figure. B. B. B is the answer. Very good. चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ. निर्विघ्न. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. निर्विघ्न. Are you there, beta? Nirvignya, are you there? No. Viren Rode. Viren, are you there? Am I audible, Viren? Are you listening to me?
Am I audible, students? Sharayu, are you there? Sharayu, are you there? Yes, ma'am, I'm audible. Yes. It is the next question, question number 11. Pattern completion का question है. Ma'am, my answer is option number A. Why? मैम क्योंकि मैम पहले शेडेड सर्कल है हाफ. नहीं नहीं, रूल बताइए. फिर मैम उसके नीचे एक रेक्टेंगल बनाना है, फिर उसमें हमें पैटर्न नहीं एक्सप्लेन करना है, हमें रूल बताना है. इज इट मिरर रिफ्लेक्शन, इज इट वाटर रिफ्लेक्शन, इज इट रोटेशन, आर देयर टू मैम parts same, are there four parts same, is this one structure? These are the rules. ओके मैम, फर्स्ट पार्ट में पार्ट का स्ट्रक्चर का मिरर रिफ्लेक्शन मैम दूसरे पार्ट में दिखाया है, और मैम जो थर्ड पार्ट का जो रिफ्लेक्शन हो आएगा वो फोर्थ पार्ट में दिखेगा. Okay, next question, question number 12. मैम 2 minutes. मैम my answer is option number C. You are saying that C and it is the correct answer क्योंकि यहाँ पर चारों पार्ट्स आइडेंटिकल है. तीनों पार्ट्स आइडेंटिकल है तो चौथा पार्ट भी आइडेंटिकल होना चाहिए. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिगर सीरीज का क्वेश्चन हमारे सामने है. क्वेश्चन नंबर 13. मैम फर्स्ट फिगर में एक ट्रायंगल दिखाया है, मैम उसको रोटेट किया है. फिर मैम सेकेंड फिगर में जो फिर से उसको रोटेट किया है. मैम थर्ड फिगर को रोटेट करेंगे. आंसर मैम ऑप्शन नंबर बी लेंगे. B is the correct answer. In this question, the figure is rotated 1.5 side in the anti-clockwise direction. कितना रोटेट किया है? So 1.5 side. मतलब यहाँ से यहाँ तक this is the half side and this is the full side. So 1.5 side anti-clockwise rotate किया है तो इसको भी this is the one side and this is the half side. So यहाँ तक rotate करना होगा. So it will be like option number B. So 1.5 side rotation at anti-clockwise direction. Next question, question number 14. मैम फर्स्ट फिगर में मैम ऊपर 3 लाइन से और बीच में सर्कल और नीचे 3 लाइन से. मैम दूसरे फिगर में ऊपर 3 लाइन से बीच और नीचे मैम 3 में से 1 माइनस किया तो 2 लाइन से दिखाया है. मैम थर्ड फिगर में ऊपर भी 2 लाइन से और नीचे भी 2 लाइन से. तो मैम आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मैम. You are saying that B. It is option number D. चलिए थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी की प्रैक्टिस करना जरूरी है. नवनीत का बुक लीजिए. नवनीत के बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को रूल वाइज रिवीजन कीजिए. ओके. ओके. क्योंकि अगर मेंटल एबिलिटी
में इतना टाइम लगेगा तो मैथ में और इंग्लिश में आपको टाइम कम पड़ जाएगा इन द फाइनल एग्जाम। सो एक रिवीजन कंप्लीट कीजिए, 2 दिन में रिवीजन कंप्लीट हो जाता है 10 चैप्टर्स। ओके, क्योंकि लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है वहां पर, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से समझ में आना चाहिए। इन द फर्स्ट क्वेश्चन फिगर देयर आर 3 and 3 lines upper and the bottom side. In the next question figure, 1 line lays from the bottom. In the next question figure, there is one more line eliminated on the top side. So in the next question figure, there will be only 2 lines at the top and 1 line at the bottom. मतलब bottom का एक line eliminate होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये दूसरे स्टूडेंट को चांस देते हैं। देविका वर्मा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello, ma'am. देविका वर्मा, Yes, ma'am. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, ma'am. Ma'am, first figure is rotating through 45 degree. 45 degree anti-clockwise. Yes. So what will be the answer? So, ma'am, option number B is answer. Yes, B is the correct answer. Very good. Next question, question number 16. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Ma'am, option number D is correct. Why? Ma'am, first figure में ना first कैपिटल लेटर में के फर्स्ट 4 लेटर्स दिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट मतलब फिगर में उसके बाद के 4 दिए हैं, और थर्ड में उसके भी बाद के, और अब फोर्थ फिगर में ना के बाद नो एल के बाद के 4 आएंगे। बी, सी और डी। Yes. E, F, G, H, I, J, K and L. So in the next question figure, there will be M, N, O and P in the clockwise rotation, in the clockwise direction. So option D is the correct answer in this question. Next question, question number 17, analogy का question है। Yes, ma'am. मैम आउटर शेप ना इनर शेप मतलब अंदर जा रहा है, और अंदर का शेप ना बाहर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आंसर। Yes, outer structure and inner structure are interchanging their places, so option B is the correct answer. Next question, question number, ये देखिए कभी कभी ना इस तरह के क्वेश्चन दिखाई देते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनालॉजी, बट जो दो दो डॉट्स दिए होते हैं ना, वो डॉट्स नहीं दिए दिए हैं, तो कभी कभी हमें ऐसे लग सकता है कि ये क्वेश्चन क्वेश्चन फिगर सीरीज का होगा। सो जो भी ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको ठीक से पढ़ना है कि एनालॉजी का क्वेश्चन है कि फिगर सीरीज का है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनालॉजी। मैम माय आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Okay, so in the first question figure there is one bigger triangle, and in the next question figure there are two smaller two. So in the Yes. third question figure there is only one bigger circle. So in the next question figure there should be two smaller circle, same as the third one. सेम जैसे है वैसे अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। So C is the answer. Yes. Next question, number 19. एनालॉजी का ही क्वेश्चन है ये भी। यस मैम। मैम फर्स्ट फिगर में ना जो अंदर की साइड स्क्वायर दिया है वो ना अब एलिमिनेट कर दिया है, और सिर्फ वो फिगर थी उसको 180 डिग्री रोटेट किया है क्लॉकवाइज। तो अब थर्ड फिगर को भी वैसे ही करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर। ऑप्शन सी, इट इज 180 डिग्री रोटेशन, एंड इसके अंदर जो स्क्वायर है, छोटा वाला स्क्वायर, उसको एलिमिनेट करना है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी।
Next question number 20. मैम फर्स्ट फिगर में जो शेड किया हुआ पार्ट है ना इनर साइड में, वो सेकंड फिगर में दिया है, वो भी अनशेड। और अब थर्ड फिगर में जो अंदर का शेडेड ट्रायंगल है ना, वो फोर्थ फिगर में दिखाएगा, लेकिन अनशेडेड। बी ऑप्शन। ऑप्शन बी। वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ। अन्वी पाटिल। हेलो मैम। Yes, Anvi. Here is the next question number 21. ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? मैम ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। मैम चलिए बताइए फिर क्या होगा? मैम आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। You are saying that C and it's correct. We have to draw the broken edges, so we can option C have perfect size and structure like the question figure. So this is our correct answer. Next Yes. question number 22. Ma'am, my answer is option number A. You are saying that A is the answer. So if we highlight the edges, we can see the answer in only option number A, because this is the rectangular part which is not in any option. Next question number 23. Ma'am, my answer is option number A. You are saying that A is the answer. Let's see. It's A. Very good. Thank you. Question number 24. Ma'am, my answer is option number Option number C. Is it? No. Look at this one line which is different in option number C. This one. It is too much longer. In the question figure, it is smaller. So it is correct in option number A. Yes, ma'am. So A is the correct answer. Next question number 25. Ma'am, my answer is option number D. तो ये मिरर रिफ्लेक्शन है. मिरर रिफ्लेक्शन में लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट. Left. राइट में क्या दिखाई दे रहा है? राइट में दिखाई दे रहा है एक नीचे की तरफ एरो. तो ये नीचे के ही तरफ रहेगा लेकिन लेफ्ट में दिखेगा. ऑप्शन ए में सही है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन बी एलिमिनेटेड, ऑप्शन सी हैव इट, ऑप्शन डी हैव इट. देन अगेन हियर इज वन सर्कल. It should be in the left side. So option A have it, option C don't have it. So B and C are eliminated and option D have it. नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें एक शेडेड रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है इन द टॉप लेफ्ट साइड. इट शुड बी इन द top right side in the answer figure, but in option number A it is wrong. So option D is the correct answer, right? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और किसी और स्टूडेंट को चांस देते हैं. किससे बात करेंगे? आर्या से बात करते हैं. आर्या, आर यू देयर? Hello, ma'am. On screen. Of this page 26. Screen black. स्क्रीन ब्लैक नहीं ना बेटा, स्क्रीन तो विजिबल है. I think you don't have proper network. Sound is also breaking, beta. Sanchit, are you there, Sanchit? Hello, ma'am. Yes, संजीत बताइए क्या आंसर है इस क्वेश्चन का?
What happens, Ajit? Are you there, Sanjeev? Okay, Tanushka. Tanushka. Are you there, Tanushka? अथर्व सोनवणे. अथर्व सोनवणे. Am I audible, students? Am I audible? So, Abhinav, are you there? Abhinav? I can't listen you. What is happening? Just a minute, okay? Am I audible now? अथर्व सोनवणे. Hello, ma'am. Yes, beta. Yes. चलिए, let's see the question. Here is the question number 26. Ma'am, my option number is A. Okay. मैम क्योंकि वो लेफ्ट साइड में भी किया तो वो वैसा ही दिखेगा और हाँ, राइट साइड बिल्कुल. वो वैसा ही दिखेगा मैम. यस, वो लेफ्ट और राइट चेंज ही नहीं है, डिफरेंस ही नहीं है. दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. मैम my option number is B. Okay. You are saying that B is the answer. Let's see. It's correct. Next question, question number 28. Yes. Ma'am, my option number is C. Okay. So let's see, is it correct or not? Yes, it's C. Next question, question number 29. It is the question of folding and unfolding. Ma'am, option number D.
You are saying that D is the answer. Let's see, is it correct or not? Yes, it's correct. क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर दिया है कट करके, मतलब यहाँ पर कॉर्नर में सबसे लास्ट फिगर में एक स्क्वायर साइज कट दिया है. ये स्क्वायर पेपर अनफोल्ड करने के बाद चारों कॉर्नर्स पर दिखाई देना Yes, चाहिए. ma'am. विच ऑप्शन नंबर डी ओनली. So D is the correct answer. Next question, question number 30. Ma'am, option number B. You are saying that B is the answer. क्या होगा? जो स्क्वायर है उसके अंदर एक शेडेड डॉट आ जाएगा, जो शेडेड डॉट है उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और जो नीचे का स्क्वायर है उसके अंदर भी ये शेडेड डॉट प्लेस होगा. B is the correct answer. Okay, B is the correct answer. Next question, question number 31. Ma'am, my option number is B. You are saying that B is the answer and it's correct. Let's see. Yes, B1 is the answer. Next question, question number 32. Ma'am, this also option number B. You are saying that B and it's correct. क्या होगा? थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पर Yes. देखिए नीचे के साइड पर ये वाला एरो दिखाई दे रहा है. विदाउट फोल्डिंग द पेपर दे पंच हियर. बाद में Yes. हमें इस पेपर को यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है. जब हम फोल्ड करेंगे तो जो नीचे का पार्ट है वो ऊपर के पार्ट पर फोल्ड होकर दिखेगा. तो ये वाला एरो यहाँ पर एग्जैक्टली प्लेस होना चाहिए. Yes, ma'am. ऑप्शन ए में एरो नहीं है, एक ट्रायंगल है. Yes, ma'am. ऑप्शन बी में जो दिया गया है वो सही है, ऑप्शन सी में भी सही है, ऑप्शन डी में भी सही है. बट व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स सी. हाँ, क्या होगा? Yes, ma'am. उसके बाद में यहाँ पर जो दिया गया है ये पार्ट इस पर प्लेस होगा. ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन कहाँ पर दिखाई देनी चाहिए? यहाँ पर. Yes, ma'am. विच इज नॉट इन ऑप्शन नंबर सी. और ऑप्शन डी में तो एरो का पोजीशन गलत है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's come to the next question, question number 33. C. Ma'am, option number second. You are saying that the second one is the answer and it's correct. B is the answer. Question number 34. Ma'am, it is option number B. Yes, 4 इक्वल साइज के Yes, ma'am. होने चाहिए थे. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. Ma'am, it is option number second. यस, इट्स करेक्ट. यहाँ पर 4 जो स्ट्रक्चर्स है उन चारों को मिलाकर एक जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो ऑप्शन बी की तरह बन रहा है. क्वेश्चन नंबर 36. Ma'am, it is also option number second. It is A. Yes, sorry. Ma'am, उसकी हाइट बढ़ गई थी. Oh, right. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. दूसरे स्टूडेंट से बात करते हैं बेटा अभी. Yes, ma'am. Thank you. कौन है, कौन बात करना चाहता है जिसको अभी तक चांस नहीं मिला है? सोहम पवार. Soham, this is question number 37. Ma'am, the screen is no. Now it's visible.
Ma'am, my The question answer from is yes. Ma'am, my answer is option number D. You are saying that D and it is the correct one. इसको जरा हाईलाइट करके मैं बताती हूँ कि कहाँ पर बन रहा है ये फिगर, क्योंकि बाद में अगर किसी को डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस तरह से दो स्टैंडिंग लाइंस चाहिए। सो दो स्टैंडिंग लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। Then here is one slanting line, so this one is the slanting line. Then again this is a triangle, so here is a triangle. So option D is our correct answer. Next question, question number 38. Ma'am, the answer is option number C. You are selecting option number C. Yes. Look at this. So C is the answer. Next question, number 39. Ma'am, my answer is option number D. It's correct, option D. मैं highlight करके बताती हूँ कहाँ पर है structure. So these are the two lines like this. Then this is the structure and this one is the standing line. Like a kite shape. Yes, kite shape. Next question, question number 40, the last question of mental ability. ये हमारे नवनीत पब्लिकेशन में था, याद है? What, ma'am? ये क्वेश्चन हमारे बुक में था, याद है? Yes. What is the answer? Ma'am, my answer is option number A. Option number? C. Not C. Where is in C? No. D. क्योंकि इसकी हाइट जो है वो हाइट कम है, तो यहाँ पर हमें यहाँ लेना होगा उसको। सो इन ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट। अब चलते हैं लैंग्वेज की तरफ। लैंग्वेज में हमारे 4 पैसेजेस है, उनको एक बार देखते हैं। पैसेज पढ़ने की आई थिंक जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्वेश्चंस लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रही टू ऑप्शन ए गिव अप ऑल comforts, option B plan violent actions against British, and option C offer satyagraha at a personal level, and option D work for the improvement of the condition of region. So यहाँ पर पैसेज में बताया गया है कि हर एक ने खुद के एक लेवल पर क्या करना चाहिए, सत्याग्रह ऑफर करना चाहिए। सो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड इट। Yes. A peace spread is option number D. A walk through a violence region in order to spread peace. Yes. एक ऐसा वॉक था जहां पर वायलेंस था, वहां पर जाना और वहां पर पीस मतलब शांतता प्रस्थापित करना। नेक्स्ट है सोशल एक्टिविस्ट विनोबा भावे वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद Harijans. देखते हैं पैसेज। विनोबा भावे एक्चुअली usually associated with भूदान मूवमेंट वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। तो भूदान है क्या यहाँ पर ऑप्शन में? नहीं है, राइट? No. 21 took a charge of ashram at Varda. He was heartedly in the Khadi movement and in movement to bring social equality to the Harijans. Here is the answer, right? Yes. यहाँ पर तो हरिजन्स के लिए उनका काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मूवमेंट इज अ और एन डैश डैश। Noun. Noun. को बताया गया है कि अगर समझ लीजिए कोई वर्ड एडजेक्टिव है तो हम कोई
नाउन रख के देख सकते हैं कि क्या वो एडजेक्टिव है क्या, क्योंकि एडजेक्टिव का काम होता है नाउन के बारे में जानकारी देना कि नाउन कितने हैं, कैसे है, नाउन के बारे में जानकारी देने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो अगर आप मूवमेंट वर्ड को नाउन के लिए जानकारी देने के लिए यूज करेंगे तो कोई सुटेबल एडजेक्टिव आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज एक्चुअली अ नाउन। तो नाउन कभी नाउन के बारे में जानकारी नहीं दे सकता है। देन अगर देखेंगे हम एडवर्ब, तो एडवर्ब आता है वर्ब के बारे में जानकारी देने के लिए, लाइक एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के बारे में जानकारी देता है कि वो जो कुछ भी एक्शन है वो कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आता है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब भी नहीं होगा। अब नाउन की बात आती है, तब नाउन में मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर कोई स्टेट का नाम है या फिर कोई स्टेट, मतलब स्टेट राज्य नहीं, स्टेट मतलब कोई ऐसा स्टेट जो हम मेंटल लेवल पर उसको यूज करते हैं वर्ड को। देन किसी अगर फीलिंग का नाम है, फीलिंग का नाम है, तो उन सबको हम नाउन के तौर पर देखते हैं। अगर आप चाहे ना तो एक बेस्ट काम कीजिए, जब तक आपको नाउन समझ में नहीं आता, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक लिस्ट मैं आपको शेयर करती हूँ। उन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना एक बार आप पढ़ लो, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के वर्ड होते हैं जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक नाम होता है, किसी चीज का नाम। तो मूवमेंट का मतलब होता है, इसको मराठी में चळवळ बोलते हैं हम। तो इट इज अ नेम। ऑप्शन ए नाउन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चंस पिछली साल नहीं आए थे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन हैं, ये पिछले क्वेश्चन पेपर में नहीं मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट इज डैश और डैश, मतलब डैश ए और एन। क्या है फर्स्ट? क्या देखिए, एडजेक्टिव। फर्स्ट का मतलब होता है पहला। तो पहला जो वर्ड हमें नाउन के बारे में जानकारी दे सकता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। सो हम कह सकते हैं पहली मंजिल, या फिर पहला लड़का, पहली स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट, पहला सब्जेक्ट, कहते हैं ना हम फर्स्ट सब्जेक्ट। पहली गाड़ी। यस, तो फर्स्ट अगर लेंगे तो फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट, फर्स्ट पेज, फर्स्ट, मतलब फर्स्ट जो है वो पहला। इस तरह से किसी भी नाउन के बारे में जानकारी देने के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा वर्ड है। तो इट इज एन एडजेक्टिव। Choose correct alternative. Grandmother did not prepare growing flowers. So there false है. Where is the answer in the passage? Ma'am, in this fourth line. Second last line. Here is the answer. Next question, question number 7. Grandmother didn't mind trees. This expression means. यहाँ पर सेकेंड लास्ट लाइन जो अभी हमने हाईलाइट की थी, grandmother didn't mind trees, but she preferred growing flowers was consistently gathering seeds and catalogs. Grandmother हाँ, catalog. So grandmother was not opposed to the idea of having trees in the compound. अपोज मतलब किसी चीज से ऑपोजिट होना, विरुद्ध होना, उसके अगेंस्ट होना। तो इस सेंटेंस का मतलब ये दादी माँ को, ग्रैंड माँ को उसके उनके कंपाउंड में ट्रीज होने के अपोज नहीं थी वो,
उसको ये नहीं लगता था कि ट्रीज नहीं होने चाहिए, उसको उल्टा ये चाहिए था कि उसके कंपाउंड में ट्रीज रहे, इसलिए वो हमेशा सीड्स और कैटलॉग्स को ऑर्डर करती थी। तो Yes. ये इसका मतलब था, तो ऑप्शन सी हमें आंसर मिल रहा है। द No, ma'am, नेक्स्ट option क्वेश्चन, B. oh sorry, B. Next question is question number 8. Choose the correct option. The leaves are, कैसे थे leaves? The leaves Slim are wasted. slim waisted. Where is the answer? Yes, here is the answer. Slim waisted leaves will spin like tops. First, the leaves were spin like tops. Third line में हमने answer किया है. Next question है question number 9. Which tree had forced its way through the wall? People. People. Where is the answer? Here is the answer. Second line. The second line. आपके आसपास इतनी ज्यादा नॉइज किस चीज की है? मैम वो मेरे मम्मी को बोल रहे तो बहुत ज्यादा नॉइज सुनाई दे रहा है क्लास में. There मैम मैं were बता there रहा हूँ उनको. found before. अच्छा वो नहीं सुन रहे फिर भी. The house was built नहीं. into an old people that had forced through the wall. तो people tree की बात हो रही थी in the first sentence, तो second sentence में उसी को continue किया है और बताया गया है about people tree. So option 1, option A is the correct answer. Next question है question number 10. What is the plural of brick? Bricks. Bricks, yes. चलिए अब चलते हैं किसी और स्टूडेंट के पास और बात करते हैं उनसे. तनिष्का शिंदे, आर यू देयर? तनिष्का. Tanishka, so here is the 11th question. Choose the correct alternative. What did Rabindranath Tagore experience with his father in the Himalayas? Where is the answer in the passage? Tanishka? Ma'am, screen is black. Oh. Wait for a second and see. Is it visible now? No, ma'am. No. Let me see what is happening. Is screen visible, students? Is screen visible? जिसका माइक चालू होगा वो बोलो. फिर क्या बोलना है? मैम जस्ट अ मिनट, मैसेज पढ़ने दो. आप कंटिन्यू मैसेज करेंगे तो पढ़ूंगी कैसे मैं? मैम प्लीज टेक अ ग्रामर क्लास on Sunday 7 to 8:30 please. 7 to 8:30. Ma'am, but not seeing the chat. Ma'am, can you conduct a class of grammar on Sunday? Okay. इससे पहले भी हमने ग्रामर पर लेक्चर्स लिए थे स्टूडेंट्स, आपने देखे नहीं फिर बाद में, आप जाके वहां पर भी देख सकते हो. आई विल टेक वन मोर क्लास, बट हमने ऑलरेडी लिए हुए ग्रामर पर क्लास. ठीक है, ले लेंगे. एक लेक्चर में पक्का कंडक्ट करूंगी, नॉट टुमारो बट यस पक्का करूंगी. ठीक है. सो लेट्स सी. स्क्रीन विजिबल बेटा? तनिष्का? तनिष्का? यशराज लोखंडे?
Are you there, Yashraj? Are you there, Yashraj? Yashraj, are you there? रूपाली निमजे, हैंड रेज कैंसिल कर दिया आपने। प्रियांशी पवार। Hello, ma'am. Am I audible? Yes, Priyanshi. So here Ma'am, is the question. What did Rabindranath Tagore experience with his father in the Himalayas? ma'am, there is a 11th question. Yes. So, the Rabindranath Tagore Himalayas. Ma'am, it is in the line, fourth line. Yes. So the answer is he experienced the deep serenity of the mountains. Yes. Right? Yes, Okay. ma'am. Next question. Question number 12. We effect did the company of the wind, the Wind, waves, the birds, the the sky, sky, the sunrise and the sunset have on the poetry of Rabindranath Tagore? मैम the passage में है कि his poetry was filled with tenderness and fragrance. Okay, so option E is the answer. Next question. What is the name of the collection of poems by Rabindranath Tagore? Ma'am, it's Gitanjali. Gitanjali. The Gitanjali. Yes. Next question. Mind is a or an dash. Mind क्या है? Noun है. Ma'am, mind is a noun because it is a thing. It is a name. Mind Yes. is name. अभी आप अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको परेशानी होना तो आप उल्टा भी देख सकते हैं कि माइंड तो प्रोनाउन नहीं हो सकता है। प्रोनाउन कौन से होते हैं? तो आई, जो वो वी, I is she he. दे। उसके बाद में उसके सारे के सारे क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जैसे कि आई का This. वी होगा, आई का मी होगा, आई का अस होगा। तो ये Yes. सब भी जैसे कि अगर समझ लीजिए ही है तो ही से हिज बनेगा, ही से हिम बनेगा, ही से Him हिमसेल्फ। बनेगा. तो वो सभी प्रोनाउंस होते हैं। तो यहाँ पर प्रोनाउन तो लिमिटेड है, माइंड कोई प्रोनाउन तो होगा नहीं, शुड बी एलिमिनेटेड। एडजेक्टिव Okay. क्या होता है? तो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। तो कोई भी सूटेबल नाउन Yes, माइंड के ma'am. साथ आप ऐड करके देखिए, कोई सूटेबल नाउन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन माइंड वर्ड में चेंज नहीं करना, उसको कोई सफिक्स, कोई प्रीफिक्स कुछ ऐड नहीं करना, एज इट इज यूज करके देखना। Okay. एज वेल एज क्वेश्चन में वो वर्ड किस तरह से यूज किया है वो भी आपने देखना है, क्योंकि एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट्स का काम कर सकता है। सो Yes. पैसेज में देखना है कि वो वर्ड कहाँ पर है, किस तरह से यूज किया है, एंड देन यू कैन आंसर। देन एडवर्ब, एडवर्ब होता है जो वर्ब के बारे में जानकारी दे, मतलब Yes. एक्शन कैसे हुआ है, एक्शन कब हुआ है, हाँ, कब हुआ है, कैसे हुआ है. इस तरह से। तो ही इज वॉकिंग स्लोली, कैसे चल रहा है वो? My voice is clear ना? यस यस, कैसे चल रहा है वो? ही इज वॉकिंग स्लोली, कैसे चल रहा है वो? He is walking slowly. मतलब वो slowly walk कर रहा है. इज एन एडवर्ब। Yes. तो इस तरह से आपने वर्ड को यूज करके भी देखना है, एज वेल एज पैसेज में देखना है कि वो वर्ड कहाँ पर यूज किया है, कैसे यूज किया है, और देन यू Okay. कैन आंसर। इट इज नॉट प्रोनाउन, इट इज नॉट एडजेक्टिव, इट इज नॉट एडवर्ब, सो इट इज अ नाउन। Yes. Next question, question number 15. How much 15. time How Rabindranath much Rabindranath Tagore? Ma'am, it is 4 month. Passage में दिया है. 4 month दिया है, so 4 month, option B is the answer. Next question is the person who will assured will in the Well, world of bliss who laid down 5. I ma'am, think for it the is sake of danger. for the sake of stranger. Okay. मैम ये भी Next पैसेज में ही है. है ना? Okay.
है तो इट्स ओके, नहीं मिल रहा है तो फिर ढूंढ के देंगे हम. Yes. What is that which shines brightly after it burnt? Gold. Gold. Next question number 7, sorry, 18. 18. What is that which produce more juice after it cuts into pieces? Ma'am, it is sugar cane. Okay, is it in passage? Yes, ma'am. Okay. The next word is, what is the opposite word of profitable in the passage? Unprofitable. Unprofitable. The prefix is un. Prefix is un. Yes. And the last question is, gold is or Material an. noun. अभी मटेरियल नाउन किस चीज को बोलते हैं, जरा एक्सप्लेन करके बताइए. मैम जो हम किलोग्राम, ग्राम और मतलब किलोग्राम, ग्राम, ऐसी मिलीग्राम चीज, ऐसे काउंट करते हैं ना उसमें. हाँ, ऐसी चीज जिसको हम डायरेक्टली 1 to 3 में काउंट नहीं कर सकते हैं. वी Yes. हैव मेजरमेंट्स देयर. मेजरमेंट्स क्या हो सकते हैं? यू कैन से 1 cup ऑफ कॉफी. तो कप Yeah. का मेजर यूज किया है. यू डोंट से 1 कॉफी, 1 मग और 1 कप. वी डोंट नो. Yes. So 1 cup of coffee. तो कॉफी के लिए कप यूज किया जाता है, वाटर के लिए ग्लास यूज करना पड़ता है, लीटर यूज करना पड़ता है. लीटर वाटर है, शुगर है, सॉइल है, मिल्क है, राइस है, जो भी वर्ड है जिसको हम गोल्ड है, जिसको हम डायरेक्टली 1 to 3 नहीं बोलते. आई वॉन्ट 1 ग्राम गोल्ड, ग्राम बोलते हैं. Yes, ग्राम, किलोग्राम ऐसे बोलते हैं हम. नहीं गिन सकते जिनको हम, लाइक आई हैव 1 पेन, मैं 1 पेन कह सकती हूँ, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा दैट 1 कप ऑफ पेन. Yes. राइट. तो 1 पेन में काउंट कर सकती हूँ दैट दिस इज द 1 पेन, 3 पेन, 4 पेन. मैम तो फिर वन पेन कॉमन नाउन में आएगा ना. हाँ, कॉमन नाउन में आएगा. तो ये मटेरियल नाउन में नहीं आता है. तो मटेरियल नाउन को Yes. हम 1 में काउंट नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई दे आर मटेरियल. Yes. अब कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होते हैं? तो जो कॉमन नाउन, फॉर common, एग्जांपल, 2 names. One is Sudhir one is Sudhi, and the next is boy. तो हम boy. किसी तो भी boy कॉमन is a common boy, noun and Sudhir is a proper noun. एक नाउन का नाम रखा हुआ है. हम हर लड़के को सुधीर नहीं बोल सकते हैं. No, ma'am. सुधीर इज अ प्रॉपर नाउन. ये प्रॉपर है. और बॉय जो है ये कॉमन है. इसके लिए मैं Common. और कुछ आपको बताती हूँ. प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, हमेशा. Yes. प्रॉपर नाउन कभी भी स्मॉलर लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, कैपिटलाइजेशन होगा ही होगा. सेकंड चीज क्या है, ये क्योंकि हमें लिखा हुआ बताना है तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं. अगर वर्ड दिया है और यहाँ पर कैपिटलाइजेशन है इन द फाइनल पेपर, सो इट विल बी Proper noun. वन मोर थिंग, प्रॉपर नाउन को हम कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं. Yes. होता है क्या प्लूरल फॉर्म? No, सुधीर का बताइए. वो अकेला ही होता है. और वन मोर थिंग, इसके पीछे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है. Yes, ma'am. Article बताइए, आप ध्यान रखिए. मैं कॉमन नाउन कैसे फाइंड आउट करना है वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि बाकी सब बचेंगे वो कॉमन नाउन ही होंगे. बिकॉज ऑल मटेरियल नाउन्स आर कॉमन नाउन, ऑल Yes. कलेक्टिव आर कॉमन नाउन. बट स्पेशली यहाँ पर जब हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन के पीछे ए एंड द आर्टिकल यूज नहीं होते हैं बिफोर द प्रॉपर Yes. नाउन. प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, नहीं बनाते हैं हम उसको प्लूरल. No. इसका हमेशा कैपिटल लेटर होता है. कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा प्रॉपर नाउन. तो Yes. इन सब चीजों से हम प्रॉपर नाउन को फाइंड आउट कर सकते हैं. और कॉमन नाउन में ये सब चीजें नहीं होती. कॉमन नाउन के लिए हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं. कॉमन उसको नाउन प्लूरल भी बना सकते हैं और कैपिटल वर्ड यूज कर, हो सकता है कि वो फर्स्ट वर्ड है तो करेंगे, नहीं तो नहीं. फिश का प्लूरल फॉर्म फिश होता है. फिश ही होता है. नो फिश ही होता नो है. मैम, फिशेस. नो फिशेस, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश को फिशेस कहा जाता है.
Okay. They are for types, not for more fish. ओके Okay, ma'am. तो लेकिन फिश का प्लूरल चेंज नहीं होता, लेकिन फिश को हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं. इट मीन्स इट इज कॉमन नाउन, नॉट प्रॉपर. प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि हम उसको प्लूरल यूज ही नहीं करते. Yes. एंड कैपिटलाइजेशन कॉमन नाउन का सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रूल में होता है, जैसे कि वो सेंटेंस के शुरुआत में आ रहा है तो उसको हम कैपिटल करेंगे, लेकिन बीच में आ रहा है तो नहीं. नहीं. ओके सो और सिर्फ आई को ही कैपिटल लिखना होता है अगर वो सिर्फ अकेला है तो. सिंगल लेटर है इसकी वजह से. बट दैट इज प्रोनाउन, दैट इज नॉट नाउन. Yes. ओके देन कलेक्टिव नाउन आता है. मैम जो को बोलते हैं, किसी एक ही के गट्ठे को बोलते हैं, गट्ठे को बोलते हैं, मतलब ग्रुप्स को बोलते हैं. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो एक फीलिंग है जो हम फील मतलब जैसे हम उसको टच नहीं कर सकते. यस एग्जैक्टली टच नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट के नाम है, मतलब स्टेट्स मतलब नॉट स्टेट दैट राज्य वो वाला स्टेट नहीं, कुछ स्टेट होती है तो? ना, जिससे हम बोल सकते हैं पुअर्टी इज अ स्टेट, गरीबी. यस. राइट उस तरह की जो स्टेट्स होती है, या फिर हम बोलते हैं ओल्ड एज जब आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं उस स्टेट को? ओल्ड. ओल्ड नहीं, ओल्ड तो एडजेक्टिव हो गया. यस मैम. ओल्ड तो एडजेक्टिव उस ओल्ड स्टेट का. एडजेक्टिव. व्हाट मैम? स्टेट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? जो रिच पीपल होता है तो उस रिचनेस को क्या बोलते हैं? रिचनेस इज आल्सो. यस. तो उन हम स्टेट के नाम होते हैं. ओके मैं आपको स्ट्रेट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पक्का भेजती हूँ. यू हैव टू रीड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स सो यू विल बी ओके. अंडरस्टैंड. So gold ओके. is a material noun. नाउन. Okay, and these are all types of noun: common noun, proper noun, material noun, collective noun, and abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सब मैंने already पढ़ाए हुए हैं. You can see the videos. Go there and check out. ओके. Okay. ओके मैम. मैम फिर आप फिर से लेने वाले हो क्या ग्रामर का? चल लेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं मैम इसमें कंफ्यूजन हो रहा है. जो टाइटल है, पैसेज का टाइटल और हाँ उसमें. तो इसमें ले लेंगे हम एक लेके. ओके. ठीक है चलिए बाय बाय एवरीवन. बाय मैम. बाय. कल फिर से रात को होगा क्या? कल का नहीं बेटा, कल रात को तो नहीं होगा. कभी एक बार मैं दिन में दे दूंगी सॉल्यूशन. मतलब कल ही क्या? हाँ कल होगा, एक सॉल्यूशन दे दूंगी, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती हूँ. ओके मैम. मतलब फिर 7 बजे होगा क्या? नहीं मतलब सुबह के? नहीं 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 बेटा. सुबह 7 बजे नहीं होगा ओके मतलब, लेकिन बाद में होगा. नहीं, जब टाइम मिलेगा तब ले लूंगी. थोड़ा सा ध्यान देना, अगर नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो ज्वाइन हो जाना. हो सके तो मैं बिफोर हाफ आवर आपको बता दूंगी कि वाला. ओके ओके मैम.